تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میری دلی دعا ہے کہ یہ پروگرام آپ اور ساری دنیا کے ناظرین کے لیے حقیقی طور پر باعث برکت ہو۔ ہم اعمال کی کتاب کے مطالعے میں 15ویں باب پر پہنچ چکے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے اس کی شروعات کی اور آج ہم اسے ختم کریں گے انطاکیہ کی پہلی کلیسیا پر، اور پہلے مسیحی دور میں ایک حملہ ہوا۔ وہ مسیحیت کو دوبارہ شریعت کا ماتحت کرنا چاہتے تھے، وہ انجیل میں کچھ بڑھانا چاہتے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ یروشلم کی ایک ہیکل میں کلیسیا اکٹھی ہوئی اور اس صورتحال پر خطوط لکھے اور بات کی، اور آج ہم یروشلم میں ہیکل سے لکھے گئے انہی خطوط کے بارے میں جانیں گے۔ لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں خدا کے خادم بھائی یوسف کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ ساتھ ہی دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، ان واقعات کی یاد دہانی کروائیے جو پچھلی قسط میں گزرے تاکہ ہم اس باب میں آگے بڑھ سکیں۔ غیر قوموں سے آنے والے ایمانداروں میں ایک ہلچل سی مچ گئی جب کچھ یہودی اساتذہ آئے تاکہ ختنہ اور شریعت کو قائم رکھنے کی تعلیم دے سکیں، اور انہوں نے کہا کہ نجات پانے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ ختنہ کروایا جائے اور دوسرا موسیٰ کی شریعت کو مانا جائے۔ یہ پالوس رسول اور خدا کے نزدیک تمام نیک لوگوں کی نگاہ میں انجیل مقدس پر کی گئی ایک چوٹ تھی۔ انہوں نے اس پر انکار کر دیا۔ وہ اپنے رسولی اختیار سے انطاکیہ میں بڑے ہی آرام سے یہ فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن میں کہوں گا کہ انہوں نے خدا کی حکمت کے وسیلے سے یہ فیصلہ انطاکیہ میں نہیں بلکہ یروشلم میں کیا، جو شریعت سے لگاؤ اور اس سے جڑے رہنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا ایک مقام تھا۔ سو وہ خدا کی طرف سے ایک مکاشفہ پر یروشلم کے سفر پر چل دیے تاکہ اس انجیل کو پیش کر سکیں جس کی منادی انہوں نے غیر قوموں کے سامنے کی، تاکہ کلیسیا میں اتحاد برقرار رہ سکے، تاکہ زمین پر ایک ہی کلیسیا اور اس کا ایک ہی سربراہ ہو، اور نجات کی خاطر موسیٰ کی شریعت کو ماننا، مطلب کہ شریعت پر عمل کرنا، میرے خیال میں ایک بالکل فضول بات ہے، کیونکہ ہمارا فقط مسیح پر ایمان ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ بھائی یوسف، یعقوب کے جواب میں وہ اپنی بات 13ویں آیت سے شروع کرتا ہے اور 16ویں آیت میں پہنچ کر وہ آموز کی نبوت کا حوالہ دیتا ہے۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد میں پھر آ کر داؤد کے گرے ہوئے خیمے کو اٹھاؤں گا اور اس کے پھٹے ٹوٹے کی مرمت کر کے اسے کھڑا کروں گا۔ داؤد کے گرے ہوئے خیمے کا کیا مطلب ہے اور وہ کب کھڑا کیا جائے گا؟ یقیناً یہ بات کہ میں پھر آ کر کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد کا حوالہ ہے۔ داؤد کے گرے ہوئے خیمے کا کیا مطلب ہے؟ در حقیقت خداوند نے داؤد کے لیے ایک بادشاہی کو قائم کیا اور یہ بادشاہی گرائی گئی، اور داؤد کا خیمہ کب گرا؟ جب بابل کی اسیری کا دور آیا اور قوموں کا دور شروع ہوا۔ لیکن کیا اس خیمے کو قیام بخشا جائے گا؟ ہم نے سوچا کہ شاید یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، لیکن ابن داؤد کے اندر یعنی یسوع مسیح، جس کے متعلق فرشتے نے مقدسہ مریم کے پاس خوشخبری لا کر کہا کہ خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس خیمے کو ایک بار پھر سے کھڑا ہونا تھا، لیکن داؤد کی نسل میں سے کسی کے ہاتھ سے نہیں بلکہ حقیقی ابن آدم کے وسیلے یعنی یسوع المسیح۔ اور مجھے بابل کی اسیری یاد ہے جسے ہم نوح کی کتاب کے 4 باب میں پڑھتے ہیں۔ یہ ایک آیت ہے جو یرمیہ نبی نے کہی جو آنسو بہانے والا تھا۔ اسے نوح کی کتاب کے 4 باب کی 20ویں آیت میں کہا، خداوند کا ممسوح اور غالباً اس سے اس کی مراد صدقیہ ہے جو آخری بادشاہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ان کے گڑھوں میں گرفتار ہوگا،
यानी बाबल के गढ़ों में, जिसकी बाबत हम कहते थे कि इसके साए तले हम कौमों के दरमियान जिंदगी बसर करेंगे। उन्होंने सिदकिय्याह के बारे में कहा कि इसके साए तले हम कौमों के दरमियान जिंदगी बसर करेंगे, लेकिन वो साया जा चुका था। उन्हें एक साए की जरूरत थी। उन्हें नए साए की जरूरत थी। वो साया मसीह की पैदाइश से कायम होने वाला था, उसकी पहली आमद में, लेकिन अफसोस कि उन्होंने मसीह को मसलूब किया। और क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ खत्म हो चुका है? नहीं। और खुदावंद के गैर कौमों तक अपने नाम को ले जाने के बाद और कलीसिया के उठाए जाने के बाद, इन बातों के बाद मैं फिर आकर दाऊद के गिरे हुए खैमे को उठाऊंगा। वो खैमा जो ना कि सिदकिय्याह था, ना दाऊद की नस्ल में से कोई कायम कर सकता था, उसका मसीह के वसीले से कायम किया जाना था। और यही कुछ हम लूका के 16वें बाब में पढ़ते हैं कि अबदी खैमा, 1000 साला बादशाहत का एक नाम अबदी खैमा भी है, और मसीह तमाम कौमों पर साया करेगा और इसके साथ अपने लोगों पर भी। मैं चाहूंगा कि इस बुनियादी नजरिए को समझने के लिए आप हमें अहबार 23 की 7 ईदों के मुतल्लिक बताइए, जिसके आखिर में खैमों की ईद का जिक्र है। जी, अहबार 23 में 7 ईदों में से पहली ईद ईद फसा है। इंसानी ताल्लुक भी यहीं से शुरू होता है। फसा सलीब को जाहिर करती है। सलीब के बगैर इंसान और खुदा के माबैन कोई ताल्लुक नहीं। सो हर एक मौसम की शुरुआत सलीब से होती है, और फिर इसके बाद आती है बेखमीरी रोटी की ईद, क्योंकि जो कोई मसीह पर ईमान लाता है उसे गुनाह और बदी से पाक जिंदगी बसर करनी चाहिए, जिन्हें बाइबल में खमीर से तशबीह दी गई। और तीसरी ईद पहले फलों की ईद है, जो मसीह की क़यामत का हवाला देती है। ये तीसरी ईद है, लेकिन फिल वक्त मसीह जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। चौथी ईद ईद पेंतीकोस्त है, और हम अमाल की किताब में देखते हैं कि ईद पेंतीकोस्त के दिन कलीसिया कायम हुई, और अहबार के 23वें बाब में ये लिखा है कि तुम अपने घरों से रोटी के 2 गिरदे ले आना। एक कुर्बानी है जिसमें 2 गिरदे हैं, यहूदी और गैर कौम। फिर हम नरसिंगों की ईद के बारे में पढ़ते हैं। नरसिंगे हमें याद दिलाते हैं कि हम बहुत जल्द खुदा के नरसिंगे की आवाज को सुनेंगे और मसीह आएगा, हमें उठा ले जाएगा, और ये कलीसिया का उठाया जाना है। इसके बाद हम कफारे के रोज के मुतालिक पढ़ते हैं, और ये वाहिद दिन है जब वो मातम करते और तजलील करते। ये मसीह की कुदरत से जाहिर होने का अक्स है, और हर एक आंख उसे देखेगी, और वो जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। सो खुदा के नरसिंगे की आवाज के साथ कलीसिया जमीन पर से उठा ली जाएगी। अगली ईद दुनियावी लोगों से मुतल्लिक है। ये मसीह उठा ली के जाएगी ज़हूर होने और दुनिया के लोगों से मुतल्लिक के है। मुतल्लिक वो उसके सबब से मातम करेंगे, और उसके इकलौते बेटे के सबब से मातम करने और तौबा के सबब से खैमों की ईद आ जाती है, जो कि खुदा का आखिरी मंसूबा और खुदा का आखिरी मकसद खैमा है। खैमों की ईद या अबदी खैमे, जी। ये दाऊद के गिरे हुए खैमे के मुकाबले खैमे एक के। चीज है। गिरे हुए बिल्कुल, खैमे के। जी। सही, ये बहुत वाज़ेह है। 19वीं आयत के हवाले से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिसमें याकूब कहता है, बस मेरा फैसला ये है कि, फिर वो अपने अहकाम सुनाता है। 25वीं आयत में वो कहता है, इसलिए हमने एक दिल होकर मुनासिब जाना। 28वीं आयत में लिखा है, क्योंकि रूहुल कुद्स ने और हमने मुनासिब जाना के वो फैसला सुनाता है। वो देखते हैं, लेकिन एक इत्तेफाक राय है कि रूहुल कुद्स हमारी निगाह में भला है। हमें रूहुल कुद्स की रहनुमाई में फैसला लेने के हवाले से कुछ बताइए। जैसा कि हमने कहा कि यरूशलेम की कलीसिया में याकूब एक मौजूद शख्स था, इसलिए ये नहीं लिखा कि उसने कहा, जैसा कि पतरस के बारे में लिखा था कि पतरस ने कहा, पालूस और बरनबास ने कहा, बल्कि वहां एक और बात लिखी है कि याकूब ने जवाब दिया। गोया सारी कलीसिया उस मोहतरम और बुजुर्ग शख्स की बात का इंतजार कर रही थी, और उसने बहुत फहम और दानाई की बातें की, जिनकी बुनियाद खुदा का कलाम था, और नबियों की बातें भी उसके मुताबिक हैं, ताकि उन बातों को अहम माना जाए। ऊंचा बोलने से नहीं, चिल्लाने से नहीं, बल्कि अपनी बात खुदा के कलाम की बुनियाद पर करने से। खुदा के कलाम की आवाज सब ईमानदारों के लिए बहुत बुलंद है। कोई आवाज खुदा के कलाम की आवाज से बुलंद नहीं। लिहाजा आयत 19 है कि बस मेरा फैसला ये है कि, इससे पहले कि हम आयत 25 को पढ़ें, इसीलिए हमने एक दिल होकर मुनासिब जाना। और 22वीं आयत में हम पढ़ते हैं, इस पर रसूलों और बुजुर्गों ने सारी कलीसिया समेत मुनासिब जाना। उन्होंने इत्तफाक़े राय के साथ अपना फैसला सुनाया, और इसीलिए हमने एक दिल होकर मुनासिब जाना। फिर आयत 28 आती है। यहाँ हमसे मुराद फक्त वो नहीं जिन्होंने फैसला किया, बल्कि हमसे मुराद वो जिनमें रूहुल कुद्स सुकूनत करता है।
اور ہمارا فیصلہ روح القدس کی مقبولیت کے ساتھ اور اس سے منظور شدہ ہے، اور میں کہوں گا کہ ہم کبھی بھی اس سنجیدہ معاملے میں اپنا فیصلہ نہیں لے سکتے جب تک کہ کوئی بھی فیصلہ لینے میں روح القدس خود ہماری رہنمائی نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ مقام اول ہمیشہ روح القدس کا ہی جی، ہے، لہٰذا اور اور ہم نے بالکل سو رہنمائی روح القدس کی طرف سے تھی اور اجازت بھی روح القدس کی طرف سے تھی۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، سوال کیجیے۔ میرا ایک سوال ہے، آیت 20 میں لکھا ہے مگر ان کو اور لکھ بھیجا کہ بتوں کی مکروبات اور حرام کاری اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیز کریں، اور آیت 29 میں لکھا ہے کہ تم بتوں کی قربانیوں کے گوشت سے اور لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز کرو۔ کیا یہ ہمیں واپس اسی کی طرف نہیں لے جاتا جو کچھ پرانے عہد نامے میں لکھا ہے؟ جی بھائی یوسف، ان کے سوال پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، در حقیقت ہم یہاں دیکھتے ہیں رسولوں اور کلیسیا کا وہ اجتماع ہمیں پھر سے شریعت کی طرف نہیں لے گیا، بلکہ اس کی طرف جو شریعت سے پہلے تھا، یعنی کہ پیدائش کے دنوں میں اور طوفان اور اس کے بعد کے دنوں میں اور نوح کے دن۔ اور اگر ہم پیدائش کی کتاب کے 9ویں باب کی 4تھی آیت پڑھیں تو لکھا ہے مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا۔ سو یہاں وہ خدا کے حضور خون چڑھانے کی بات نہیں کرتا، اسے خروج اور احبار کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیں سچائی کے واسطے تیار کرتا ہے کہ خون کھانا منع ہے۔ اسی لیے آج دنیا کے تمام مذاہب میں خون کو کھانا سختی سے منع ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے کہ کیوں اس کا تعلق نوح کے دنوں کے ساتھ ہے، کیونکہ خدا بنی نوع انسان کے ذہن کو تیار کرنا چاہتا تھا، کیونکہ خون خدا کے حضور پیش کیا جائے گا، اور اسی لیے نہ تو تمہیں خون کو پینے کی اجازت ہے اور نہ ہی گلا گھوٹے جانور کو کھانے کی۔ جہاں تک زناکاری کی بات ہے تو اس کا تعلق باغ عدن سے ہے، جب خدا نے انسان کو نر اور ناری پیدا کیا اور آدم اور ہوا کو زناکاری کی اجازت نہ تھی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ سو یہاں وہ زناکاری سے منع کرتا ہے۔ وہ نہ صرف ہمیں شریعت پر واپس لے جاتا ہے بلکہ وہ جو شریعت سے پہلے تو شروع ہم اس ہوا اصول پر تھا۔ واپس آتے ہیں جب خدا نے نر و پر ہم ناری کو دنیاوی پیدا کیا، باتوں انہیں پر آ مرد گئے۔ عورت بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہوں۔ بالکل، اور یہی بات بتوں کی عبادت کے معاملے میں ہے، اور ہمیں ان بتوں سے پرہیز کرنا ہے جو طوفان کے فوراً بعد داخل ہو گئے۔ گلا گھونٹے ہوئے جانوروں کے متعلق آپ نے جو کہا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے پہلے کرنتھیوں کے 8 باب میں کہے گئے پولس رسول کے الفاظ یاد آتے ہیں کہ تم بتوں کی قربانیوں کو۔ جی، ہم ابھی بھی اسی مسئلے پر ہیں کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز، کیا حلال ہے اور کیا نہیں۔ ہمیں بتائیے کہ اگر سب کچھ ہمارے لیے جائز ہے تو کیا ایسا کوئی کام ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور کیا وہ جائز اور ناجائز کے تصور سے باہر ہو گیا؟ اس کا کوئی اور پہلو نہیں ہے جس کا حوالہ پالوس نے پہلے کرنتھیوں کے 8ویں باب میں دیا، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گا بت دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پہلے کرنتھیوں کے 10ویں باب میں وہ کہتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو قربانیاں غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے کرتی ہیں، خدا کے لیے نہیں۔ سو ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے وہ 8ویں باب میں کہتا ہے کہ غور کرو کہ بتوں کی قربانیوں کو کھانا برائی نہیں، کیونکہ زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، لیکن اگر تم جانتے ہو کہ یہ قربانی بتوں کی ہے تو اسے دینی امتیاز کے سبب سے نہ کھانا تاکہ تمہارے سبب سے کوئی ٹھوکر نہ کھائے۔ تم بتوں کی ہیکل میں کسی بت کا چڑھاوا کھانے نہ جانا۔ اور میں اپنے گھر میں گزرانی گئی بتوں کی قربانی کا گوشت کھا سکتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بت کوئی چیز نہیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ بتوں کی قربانی ہے تو مجھے نہیں کھانا، کیونکہ اس کے سبب سے میں کسی کی ٹھوکر کا باعث بن سکتا ہوں۔ اور کسی بت کی ہیکل میں جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ منع ہے، کیونکہ وہاں کھانے کی غرض سے داخل ہونا یا نہ ہونا ہی لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بتوں کی قربانیوں کو کھانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس کی وضاحت کیجئے۔ کیا یہ صرف بتوں کی قربانی کا ہی حوالہ ہے یا اس کا کوئی اور مطلب بھی ہے؟ جی، وہ اس بت کو تعظیم دینے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ سو اگر وہ بت کو تعظیم دینے کے واسطے ہے اور میں یہ سمجھتے ہوئے اس قربانی کو کھاتا ہوں تو میں کہوں گا کہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں اور مجھے اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ سو یہ کیسی رفاقت ہے کہ شیطان اور خدا کی میز پر ایک ہی وقت میں شریک ہونا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔
चाहे इस मामले में कोई पाबंदी नहीं कि एक मसीही क्या खाए और क्या पिए, पर पौलुस कहता है कि मेरे खाने से मेरे भाई को ठोकर लगती है तो मैं गोश्त कभी ना खाऊंगा। ठोकर लगी। ऐसा ना हो कि मेरे भाई को ठोकर लगे, अगरचे मुझे खाने से कुछ मसला नहीं है तो भी मेरा भाई नुकसान उठाएगा और उसके ज़मीर को ठेस लगेगी। मैं खुद को उस चीज़ से बाज रखूंगा जो जायज़ है, ताकि मैं अपने भाई को ना खो दूं। ये बाइबल हमें बताती है। कि अपने कमजोर भाई को खाने की खातिर हलाक ना होने दे, जिसकी खातिर मसीह ने जान दी। भाई यूसुफ वो दो लोग जिन्हें रसूलों ने चुना, जिन्हें कलीसिया ने चुना, 22वीं आयत में यूं मरकूम है, यहूदा को जो बरसबा कहलाता है और सलास को, ये शख्स भाइयों में मुकद्दम थे। बाद 26वीं आयत में लिखा है, इन आदमियों ने अपनी जानें हमारे खुदाउन यीशु मसीह के नाम पर निसार कर रखी हैं। इन दो मोहतरम अशखास के मुतालिक हमें और बताइए। जो कुछ हम उनके मुतालिक जानते हैं वो कम है। मसलन बैर सबा के मुतालिक हम थोड़ा ही जानते हैं, और जहां तक सिलास की बात है वो दूसरे बिशारती सफर में पालूस के साथ गया। हम कुछ अबवाब में उसके मुतालिक पढ़ेंगे और कुछ खतूत की शुरुआत में उसे सलाम कहा गया। और एक अच्छी बात यह है कि इन दोनों लोगों के तारुफ में एक बात की गई, ये लोग भाइयों में मुकद्दम थे। यहाँ से हम समझते हैं कि भाइयों में कुछ लोग मुकद्दम थे जो जमात को सही राह पर लेकर चल रहे थे। यहाँ उनके हवाले से कुछ अच्छी बातें लिखी हैं। इन लोगों ने अपनी जानें हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम पर कर रखी हैं। दरअसल उसके नाम पर अपनी जानों को निसार करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसने ये पहले ही हमारी खातिर कर दिया है। लेकिन ये शानदार बात है कि ये दोनों मसीह की खिदमत और मसीह के नाम के लिए अपनी जानों को निसार करने के लिए तैयार हैं, और ये हर दीनदार के लिए लाजमी है। अगर खुदा से मोहब्बत है और जानते हैं कि वो आपके लिए मुआ, तो आपने उसके लिए क्या किया? मसीह ने आपकी खातिर दुख उठाया, वो आपके लिए तकलीफों से दो चार हुआ, लेकिन आपने उसकी खातिर क्या दुख सहा? अब मैं 36वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा, इसके बाद हम एक वक्फा लेंगे और फिर हम मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। चंद रोज बाद पौलुस ने बरनबास से कहा कि जिन जिन शहरों में हमने खुदा का कलाम सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर भाइयों को देखें कि कैसे हैं। और बरनबास की सलाह थी कि यूहन्ना को, जो मरकस कहलाता है, अपने साथ ले चले। मगर पौलुस ने यह मुनासिब ना जाना कि जो शख्स पैम्फिलिया में किनारा करके उस काम के लिए उनके साथ ना गया था, उसको हमरा ले चलें। बस उनमें ऐसी तकरार हुई कि एक दूसरे से जुदा हो गए, और बरनबास मरकस को लेकर जहाज पर कुप्रोस को रवाना हुआ। मगर पौलुस ने सिलास को पसंद किया और भाइयों की तरफ से खुदावंद के फजल के सुपुर्द होकर रवाना हुए, और कलीसियाओं को मजबूत करता हुआ सूरिया और किलकिया से गुजरे। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल कीजिए। सच जी। कहूँ तो मुझे इस हवाले में जो आपने अभी पढ़ा, एक बहुत अजीब बात नज़र आई। पौलुस और बरनबास जैसे लोग जो रूहानी समझ बूझ रखते हैं, एक दूसरे की ऐसी बात के लिए जो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी नहीं है, ऐसी ज़ोरदार मुखालफत कैसे कर सकते हैं? मैं चाहूँगी कि आप इसकी वजाहत करें। दो रसूलों पौलुस और बरनबास के दरमियान इख्तिलाफ कैसे हुआ? हमें कुछ बातों पर गौर करना होगा। पहली बात यह है कि वो इंसान है और हम जैसी फितरत रखते हैं, ये पहली बात है। और दूसरी बात, इख्तिलाफ एक ना था, बल्कि इसकी जड़ें पालूस और बरनबास में मौजूद हैं। दरअसल इन दोनों किरदारों के दरमियान एक फर्क है। हालांकि वो दोस्त थे और आखिर तक वो दोनों दोस्त रहे। हम इसे करंथियों के नाम लिखे गए खत से समझते हैं। 9वें बाब की 6ठी आयत है। पालूस बरनबास का इंतहाई बाइज्जत हवाला देता है, लेकिन पालूस का किरदार एक बहुत ही सख्त किरदार है और इसी तौर पर उसका किरदार तश्कील पाया है। वो खुद को भी ढील नहीं देता। जब उन्होंने उससे कहा कि तुझे यरूशलेम में बांध लेंगे, तो उसने कहा तो क्या होगा, यरूशलेम में बांधे जाने से क्या मसला है? मैं वहां यीशु के नाम की खातिर मरने के लिए भी तैयार हूं। उसका किरदार वाज़े था। वो फक्त सही और गलत को जानता था। इसके दरमियान कुछ ना था। बरनबास का किरदार आजाद इंसान का था, क्योंकि वो लोगों को दूसरा मौका देता था। उसने कहा, हाँ, मरकस ने गलती की, लेकिन हम उसे एक और मौका क्यों ना दें?
पालूस ने कहा, हम उसे दूसरा मौका क्यों दे? जो शख्स किनारा करके उस काम के लिए उनके साथ ना गया, बेहतर होगा कि उसे साथ ना ले जाएं। कौन सही था? देखें, जाती तौर पर मुझे लगता है कि वो दोनों ही सही थे, और खुदावन ने सब बातों में मरकज के लिए और कलीसिया के लिए भलाई को पैदा किया। पहले कलीसिया की भलाई को एक सफर की बजाय अब वो 2 सफर बन गए, क्योंकि बरनाबास मरकज को ले गया और पालूस सिलास को, सो एक की बजाय 2 बशारती सफर हो गए। और इसमें मरकज का फायदा हुआ। जी हाँ, क्योंकि मरकज को लगा कि पालूस ने उसे रद्द किया क्योंकि वो संजीदा नहीं है। उसे गैर संजीदा लोग पसंद नहीं, पर बरनाबास उसे दूसरा मौका देने के लिए अपने साथ ले गया। ये सिर्फ पालूस की सख्ती की वजह से हुआ, लेकिन बरनाबास की कुशादा दिली और दूसरा मौका देने की वजह से एक शख्स खुदावन की तरफ से तैयार किया गया और हमसे एक मोहतरम किरदार के तौर पर मुतारफ करवाया गया। वो मरकज था जिसने हमारे लिए अंजील को तहरीर किया, एक ऐसे खादिम के तौर पर जो कभी भी खिदमत से बाज ना रहा। अच्छा हुआ कि आपने किरदारों के बीच के फर्क की बात की। शायद अगर हम किरदारों के दरमियान के फर्क को समझ सकें तो हम रंजिशों को मिटा सकेंगे। सही। और ऐसा नहीं है कि खुदा किसी सांचे से बनाता है। कलीसिया के तमाम रहनुमा या ईमानदार एक जैसे नहीं होते कि वो एक सी सोच कभी रखें। नहीं। जैसा कि आपने कहा कि मरकज को भी इस बात से फायदा हुआ। सही। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप उनकी उस ख्वाहिश पर तबसरा करें जो वापस आकर भाइयों से मिलने की थी। जैसा कि लिखा है, चंद रोज बाद पौलुस ने बरनबास से कहा कि जिन जिन शहरों में हमने खुदा का कलाम सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर भाइयों को देखें कि कैसे हैं। ये ख्वाहिश कि देखें कि भाई कैसे हैं और उनकी खबर लें। भाई यूसुफ, आज हम ये करना क्यों भूल जाते हैं? किसी ने इस आयत को चरवाहे का असूल कहा है। एक चरवाहे का असूल होना चाहिए। वो क्या है कि जिन जिन शहरों में हमने खुदा का कलाम सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर भाइयों को देखें कि वो कैसे हैं। इमसाल 27 में लिखा है, अपने रेवड़ों का हाल दरियाफ्त करने में दिल लगा और अपने गल्लों को अच्छी तरह देख। इसका मतलब है कि एक शख्स को खुदा के कीमती रेवड़ों की खबरगिरी करनी चाहिए। ये एक पासबान का काम है, पर एक मुबशर का काम इससे फर्क है। उसका मकसद फर्क है, और पालूस ने दूसरे करंथियों में ये कहा, ताकि तुम्हारी हद से परे खुशखबरी पहुंचा दें। सो एक मुबशर को बार बार फिर कर उन्हीं शहरों में आना चाहिए। मैंने शहर में कलाम सुना दिया है, अब मैं किसी दूसरे शहर को जाता हूँ, फिर तीसरे शहर में मैं सारी जमीन पर खुदा के कलाम का प्रचार करना चाहता हूँ, ताकि सारी जमीन खुदा के कलाम को पहचान ले। एक पासबान का काम फर्क होता है। मैं उन ईमानदारों के पास वापस जाना चाहता हूँ जहाँ मैंने खिदमत की, ताकि देखूं वो कैसे हैं, कि उनको दरियाफ्त करूं और हौसला बढ़ाऊं। और मैं कहूंगा कि आप इसे फॉलो अप की खिदमत कहते हैं। फॉलो अप की खिदमत। जी। शुक्रिया भाई, खुदावंद खुदा आपके आपको साथ बरकत हो। दे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आइए अब जानते हैं कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। याकूब ने उन इल्फाज का हवाला दिया जो आमोस 9 में लिखे हैं कि खुदावंद दाऊद के गिरे हुए खैमे को फिर से कायम करेगा और फिर खड़ा करेगा। गिरे हुए खैमे का क्या तस्वुर है और वो फिर से कैसे खड़ा किया जाएगा? खुदावंद ने दाऊद के गिरे हुए खैमों को फिर से कायम किया। बाबुल की असीरी के दौरान वो खैमा गिरा। दाऊद की नस्ल में से कोई भी उस खैमा को कायम ना कर सका, लेकिन ये खैमा और बादशाही दोनों हकीकी इब्ने दाऊद यानी खुदावंद यसु मसीह में बहाल होते हैं। रसूलों ने हिदायत दी कि ईमानदार खून से परहेज करें और गला घोंटे जानवरों से। क्या इसका मतलब ये था फिर से हलाल और हराम, जायज और नाजायज तस्वुर राइज हो चुका है? नहीं, दरअसल खून और गला घोंटे जानवरों से परहेज का मतलब यह था कि खुदा के लोगों के लिए ना सिर्फ शरीयत के बल्कि पैदाइश के दौर से ही ये सब ममनू था जब बनी नौ इंसान वजूद में आए। क्योंकि खुदा चाहता था कि इंसान समझे कि खून उसके लिए नहीं बल्कि बादशाह बहाया जाएगा। हम करने या न करने के चक्कर में फिर से नहीं उलझ गए कि ये हलाल है और ये हराम, क्योंकि हम शरीयत के दौर में नहीं हैं। आज हमारे पास शरीयत नहीं, बल्कि हम पहले करंथियों के 10 के असूल के तहत चलते हैं। ठीक है भाई यूसुफ, आप क्या कहेंगे? सही। खुदा का शुक्र हो। खुदा आप सबको बरकत दे। आने वाली किस्त में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अजीज नाजरीन, हम अमाल की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो एक अजीम किताब है, लेकिन आज की किस्त में खुदावंद का आपके लिए ये पैगाम है कि अगर आप मसीह को कबूल करते हैं तो खुद पर पाबंदियां मत लगाएं और ना ही इंसानों की खुद पर लगाई हुई पाबंदियों को मानें, बल्कि फक्त मसीह के पास आएं और वो आपको सिखाएगा कि किस तरह उसकी इबादत करनी और कैसे उसके साथ चलना है। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। احفظني في رضاك باقي أيام عمري
املأني بالأشواق نحوك حبيب قلبي، متى أراك عند انتهاء دربي، عند انتهاء دربي. أيقظني للصلوات، عقلني يا ربي، واحميني من الذات، وكن ينبوع حبي، وكن ينبوع حبي. يا ساكن في علاك، يا من له أمري، قد قلت لا أنساك، من مسك مس عيني، من مسك مس عيني. هيئني للبركات، اسكب سكيب حبك، وانسى كل اللي فات. هيادي أضعها في يدك، هيادي أضعها في يدك. لن أطلقك يا يسوع ما لم تباركني، ولا هرضى بحالة الجوع، فتعالى واشبعني، فتعالى واشبعني. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।